প্ৰত্যাহ্বান আছে। আমাৰ সন্মুখত জাতিটোক ৰক্ষা কৰাৰ আমাৰ দায়িত্ব আছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি এটা ৰাজনৈতিক দল নহয়। ৰাজনৈতিক দলৰ ইচ্ছা, ৰাজনৈতিক দলৰ লক্ষ্য নিৰ্বাচন জিকিব লাগে, নিৰ্বাচন জিকি চৰকাৰ চলাব লাগে, সেয়া ৰাজনৈতিক দলৰ লক্ষ্য। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লক্ষ্য ৰাজনৈতিক ইলেকশ্যন জিকি চৰকাৰ গঠন কৰাই নহয়। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যসকলে আমি ৰাজনীতিত যোগ দিছিলোঁ কিবা এটা লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ। যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমি নতুন চাম ব্যক্তিয়ে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগ দিছিলোঁ, সেই সময়ত কৰবাত নহয় কৰবাত ক্ষমতালৈ অহাৰ আৰম্ভণি সংকেত আমি কৰবাত নহয় কৰবাত দেখা পাইছিলোঁ। কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত 6জন বিধায়ক লৈ 8জন বিধায়ক লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগ দিছিলে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নামৰ এই সংগঠনটোৰ লগত জড়িত হৈছিলে, তেওঁলোকে শাসনৰ বাট ধৰি অসমত কেতিয়াবা হাতত ল'ম বুলি সেই আশাৰে তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰা নাছিল। আমাৰ সভ্যতা, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ, আমাৰ জাতিটোক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া, লালকৃষ্ণ আদৱানী ডাঙৰীয়াৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই দেখুৱাই দিয়া ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি আমি আমাৰ জাতিটোক, আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰক, আমি আমাৰ সভ্যতাক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আমাৰ অগ্ৰজসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগ দিছে। আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত যি সপোন লৈ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আমাৰ অগ্ৰজসকলে যোগদান কৰিছিল, সেই সপোনবোৰ আজি বাস্তৱত এটা এটাকৈ ৰূপায়ণ হোৱা তেখেতসকলে নিজৰ জীৱনকালতে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আমি গৌৰৱ কৰোঁ যে আমাৰ জীৱনকালতে 500 বছৰৰ অপমান দূৰ কৰি আমাৰ জীৱনকালতে আজি অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সংকল্প আজি সিদ্ধিলৈ পৰিগণিত হৈছে। আজি আমি গৌৰৱ কৰোঁ যে আমাৰ জীৱনকালতে শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়া যি আত্মবলিদান দিছিল কাশ্মীৰৰ পৰা 370 ধাৰা বিলুপ্তিকৰণৰ বাবে, আজি আমাৰ জীৱনকালতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেই সপোন, শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়াৰ সপোন আজি বাস্তৱত পৰিগণিত হৈছে। বাবৰি মছজিদৰ পৰা ৰাম জন্মভূমিলৈ, সুকীয়া সংবিধানৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণলৈ, জম্মু কাশ্মীৰক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ দৰে সংকল্পৰে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰক গৌৰৱৰ উচ্চ শিখৰলৈকে লৈ গৈছে। আজি আমি গৌৰৱ কৰোঁ যে চীনৰ দৰে পৰাক্ৰমী শত্ৰুৰ ওচৰতো, পৰাক্ৰমী ৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰতো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ সেনাবাহিনীয়ে যি ধৰণে পৰাক্ৰমেৰে কৈছে, চীনৰ দৰে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ লগত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ সংঘৰ্ষ কৰিছে, মুখামুখি হৈছে, তাক লৈ আজি আমি গৌৰৱ কৰোঁ। আমি গৌৰৱ কৰোঁ যি পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত ভাৰতীয় নাগৰিকক স্তম্ভিত কৰি ৰাখিছিলে, আজি সেইদিন পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ভাৰতৰ ওপৰতে যোনেই চকু দেখুৱাইছে তাৰ উত্তৰ কোনো গ্ৰেপ্তাৰ নহয়, জেল নহয়, এনআইএ নহয়, চিধা চিধি পাকিস্তানত গৈ বোমা বিস্ফোৰণ, বালাকোটৰ যদি কিবা প্ৰত্যুত্তৰ সেয়া পাকিস্তানত গৈ বোমা বিস্ফোৰণ, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ বোমা বিস্ফোৰণ। আজি এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আমি এটা যুগত বাস কৰিছোঁ।
আমি এটা সময়ত বাস কৰিছোঁ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্ব গুৰু বিশ্ব নেতৃত্ব দিয়াৰ পথত আগবাঢ়িছে। স্বামী বিবেকানন্দই যি সপোন দেখিছিল আধ্যাত্মিকতা বিশ্বগুৰু, আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ সময়ছোৱাত আজি আমাৰ দেশৰ প্ৰণেতাসকলে, আজি আমাৰ দেশৰ মহাপুৰুষসকলে যি সপোন দেখিছিল যে ভাৰতে বিশ্বত নেতৃত্ব দিব, আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষৰ সেই বিশ্ব শিখৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে। যোৱাকালি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যি সন্মানেৰে সৈতে বিভূষিত কৰিলে, আজি 120 কোটি ভাৰতীয়ৰ গৌৰৱৰে নতুন আনন্দৰ বন্যা কঢ়িয়াই আনিছে। আজি সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এখন নতুন ৰঙলৈ সাজি হৈছোঁ। 2016 চনত 14 চনত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিজয় হৈছিল, অসমতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে সপোন দেখিছিল যে দিছপুৰতো আমাৰ এখন চৰকাৰ হ'ব। আমি সপোন দেখিছিলোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দিছপুৰতো এখন আমাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ গঠন কৰি আমাৰ সভ্যতা, আমাৰ জাতিটোক ৰক্ষাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। 2016 চনৰ আগত পৰিৱেশ এবাৰ আমি মনত পেলাই চোৱা উচিত। আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ কি আছিল? প্ৰতিটো দিনেই বাতৰি কাকতত এটা এটাকৈ কাজিৰঙাত গড় হত্যা হোৱাৰ বাতৰিয়ে আমাৰ মনবোৰ বেদনাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি তুলিছে। চাকৰিৰ নিযুক্তিত চলা কলা বেপাৰ দুৰ্নীতিয়ে আমাৰ মনটোক বেদনাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি তুলিছে। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेवर जन्म। सभी उपस्थित अधिवक्ताओं को ऋतु शर्मा कौशिक की तरफ से नमस्कार। मैं अधिवक्ता परिषद 30,000 यूनिट की तरफ से आप सभी का 5th ऑनलाइन प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। हमारी आज हमारा 5th ऑनलाइन प्रोग्राम है। हमारी 30,000 यूनिट के प्रधान हैं श्री महेंद्र कालरा जी जो उपस्थित हैं। आपको नमस्कार। श्री आदिश जैन जी हमारे सचिव हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। और आज के हमारे स्पीकर अभी आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विद्योत्तमा झा जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिस राबी वीरवल, नमस्कार, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। सबसे पहले मैं श्री नरेंद्र कालरा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अधिवक्ता परिषद के बारे में कुछ हमें बताएं। नमस्कार, मैं नरेंद्र कालरा, मेरे हिसाब से मुझे मालूम है आपसे शेयर कर दूं। अधिवक्ता परिषद की स्थापना 7 सितंबर 1992 में एक महान विचारक दत्तोपंत जी के कमलों से हुई। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो सारी हिंदुस्तान भर में काम करती है और इसका जो ऑब्जेक्ट रखा वो रखा कि जुडिशरी में इम्प्रूवमेंट हो, हम वकील लोग अधिक क्षमता से काम कर सकें और एक ऐसी प्रणाली का ऐसे स्टैंडर्ड्स को डेवलप करें जिससे कि जो न्याय है वो अंतिम छोर तक पहुंचे और सस्ते में हमें न्याय की अवेलेबिलिटी हो। और इस सिस्टम में काम करते हुए जो पॉसिबिलिटी ऑफ जजेस है, कंसर्न फॉर वुमेन है, चिल्ड्रन है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इन सब के बारे में उन्होंने सोचा और अधिवक्ता परिषद की स्थापना की। अधिवक्ता परिषद वकीलों की एक बॉडी है जो सब स्टेट्स में हिंदुस्तान में और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो समरसता लाना है और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी नेशनल काउंसिल जो नेशनल काउंसिल नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनकी मीटिंग हर साल रहती है हिंदुस्तान भर में। डिफरेंट पार्ट्स में इसकी मीटिंग होती है और 3 साल में एक बार नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस
नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी 3 साल में एक बार होती है और उसमें सब हिंदुस्तान भर से अधिवक्ता उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अधिवक्ता परिषद बेसिकली इसकी स्थापना की गई, उसमें इसके 5 आयाम रखे, 5 ऑब्जेक्ट्स रखे मेन। पहला था स्टडी सर्कल, जैसे हम आज मिल रहे हैं, आज हम पेंडेमिक के चलते हुए वर्चुअल मिल रहे हैं, अदरवाइज ये फिजिकली होता है और महीने में एक बार होता है। हर यूनिट जितने हिंदुस्तान भर में है वो एक बार विषय पे एक्सपर्ट को बुलाकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जैसे आज हमारे बीच में लेबर लॉस पे आएंगी बीरबल जी और झा मैम, इनका हमको वक्तव्य सुनने को मिलेगा। दूसरा अहम आयाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अधिवक्ता परिषद ने बहुत सारे आयामों को छुआ है पब्लिक इंटरेस्ट में, और जो डिप्राइव्ड सोसाइटी के मेंबरान हैं, जो ऐसे अधिवक्ता हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं जब उनको न्याय की आवश्यकता होती है, तो उन तक न्याय पहुंचता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा। तीसरा आयाम हमारा है इम्पोर्टेंट वन, न्याय प्रवाह मैगजीन। जो कुछ हम करते हैं क्वार्टरली मैगजीन में छपता है, इसमें एमिनेंट जो हमारी पर्सनैलिटीज रहती है, जो रिसेंट जजमेंट आती है, जो नए लॉ आते हैं, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे कुछ भी नया डिस्कशन आता है, तो इस मैगजीन के जरिए हम अपने अधिवक्ताओं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर है न्याय केंद्र। न्याय केंद्र वैसे स्थापित होता है सारी हिंदुस्तान में डिफरेंट पार्ट्स में, इसमें फ्री लीगल एड उन लोगों को दी जाती है जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको लॉ पढ़ने में दिक्कत होती है, जो वकील तक पहुंचने में झिझकते हैं। उसमें न्याय केंद्र की स्थापना के बाद हम सब लोगों तक पहुंचे और सब लोगों तक न्याय पहुंचे। ये हमारा चौथा आयाम है। और विधायिका अधिवक्ता परिषद जो है रेजोल्यूशन कुछ पास करती है, कुछ एडवाइजरी पास करती है, जो लीगल इश्यूज को होती है और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजती है टू कन्वर्ट द स्टेट इनटू लॉ। तो ये तो था अधिवक्ता परिषद का बहुत छोटा सा परिचय जो मुझे ज्ञात था, जो मैंने आपके साथ साझा किया। मैं अब ऋतु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे चलाएं। ओवर टू ऋतु शर्मा। 16,000 कोटी टका धन्यवाद कालरा जी। हमारे बीच में रावी बिल्कुल जी है, मैं इनका एक संक्षिप्त परिचय आप सबको देना चाहूंगी। आपने स्पेशलाइजेशन किया है लेबर एंड कॉर्पोरेट लॉज में, और आप रेगुलर बेसिस पे सभी कोर्ट्स में उपस्थित रहती हैं, और आपने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स, ब्लू चिप्स कंपनीज को, पीएसयूज, गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज आदि को काफी सलाह प्रदान की है। आपने बहुत से केसेस में बहस की है और आपकी बहुत सारी रिपोर्टेड जजमेंट्स हमारे जर्नल्स में पब्लिश हुई है। आप अमाइकस दिल्ली हाईकोर्ट के में लेबर लॉज के अंदर बहुत केसेस के अंदर अमाइकस के रूप में अपॉइंट की गई हैं। आप अपॉइंट हुई हैं चेयरमैन अमालगमेशन ऑफ टॉप कंपनीज के लिए। आप अपॉइंट हुई हैं सोल आर्बिट्रेटर बाय दिल्ली हाईकोर्ट इन कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स। आपका हर माह एक कॉलम पब्लिश किया जाता है न्यू इंडिया एक्सप्रेस में। 2000 से 2017 तक ये कॉलम पब्लिश हुए। करीब 80 पब्लिकेशंस आज तक आपके छप चुके हैं जाने माने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और जर्नल्स में। आपने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स जैसे कि दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली जुडिशियल एकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, न्यूयॉर्क स्टेट बार